Hello students, welcome to Dakshina A classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well and you are studying well. So हम लोग आज start करेंगे lecture 2 of circular motion and I hope you are ready and you have completed your first lecture and the homework given to you. So we'll be starting second lecture of circular motion. So we'll take a quick revision of lecture 1 in just 5 minutes. So what we had done in the last lecture, we had introduced the circular motion and important terms related to circular motion like angular variables, angular displacement, angular position, total angle rotated, direction of the angular variables, and then how it depends on the frame as well as the position on that particular frame. Correct? So all these things we had done in the previous lecture. We had derived some equations like we have in the equation of motion for constant acceleration. We have three equations. V is equal to u plus at, and then s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as. So all those relations we did in circular motion also, like with the help of the angular variables, that omega is equal to omega naught plus alpha t, where alpha is angular acceleration, theta is equal to omega naught t plus half alpha t square, and then omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta. Again, we had seen that if we want to find out the velocity or acceleration or total angle rotated or the angular displacement, we can use the angular variables, we can take them or consider them as linear variable only. है ना, हम लोग ऐसा मान के चल सकते हैं कि the way we had treated the linear variables, the same way we can treat the angular variables. और कैसे हम उसका एनालॉग हम लोग सर्कुलर का एनालॉग लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी कैन थिंक अ रोप विच इज बाउंडेड या फिर wrapped around a pulley, and when we are rotating the wheel, the pulley is getting released or wrapped. So whatever we'll take the assumption, अगर हमने लिया कि if it is moving clockwise, then the rope is getting released. Then if we move it in the anti-clockwise direction, that rope will get wrapped. So like that we can calculate the total angle rotated or the angular displacement, है ना. तो हम लोग जैसे हमने linear में किया, हमने क्या किया, if we wanted to find out the total distance, what we did, first we found out at what point the velocity will become 0, and then we calculated distance, displacement up to that point. Then we calculated the final displacement, है ना. यहाँ पे बताया था मैंने कि भाई if the particle has started from this point and after some time it has reached to this point, if it was going straight, it was not taking any turn, then directly this displacement will be equal to the total angle, the total distance. But if it is taking some turn, it means it has traveled and then it has traveled back, so total distance will be different. So what we do, first we see at what point it has taken the turn, we calculate this displacement. कैसे? Directly if we put this instant and this instant, we will get this displacement. After that what we did, we calculated this displacement. Now if we know this length, if we know this length, we can definitely find out this length. So what will be the distance? Distance will be this plus this. Similarly we are going to do in angular motion also, because what is happening, let's say the particle has started from here, it was rotating like this continuously, and then suddenly at some point its velocity has become 0, so it will start rotating like this. So some part of the motion is positive, some part of the motion या फिर some part of the displacement is positive, some part of the displacement is negative. From here to here, if we see, from this point to this point, if we see, displacement is in this direction, so some part of the displacement is negative. Similarly, some part of the angular displacement is negative. So if we'll calculate the angular displacement, what we'll get? We'll get जो हम linear में यहाँ मिलता है, that we'll get in this case. If we put in theta is equal to omega naught t plus half alpha t square, we'll get what we get in this case. Clear? That will be the angular displacement. If we want to find out the total angle rotated, what we have to do कि पहले पूरा देखो what is the positive displacement, what is the positive displacement, then what is the negative displacement, and then add it. Similarly, what we'll do, find out the positive angular displacement, find out the negative angular displacement, and then add both of them. So the way we did in linear motion, similarly we are going to do in the circular motion. ये आपको बताया था. Again, when we want to relate the linear motion variables या linear variables with circular variables या angular variables, what we did, हमने ये देखा था कि if in this case, let's say this is theta, so what is the length of this arc? This length will be r theta if this is the radius, है ना. Let's say this is s. So if we want to take these
variables, these angular variables, and we want to take what will be the corresponding linear variable, then what we'll have to do, s is equal to r theta, ये आएगा. When the particle is traveling an angle is equal to theta, what is its displacement? अब ना किसी को लगेगा भाई डिस्प्लेसमेंट तो ये है, मतलब मान लो यहाँ पे गया तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है, ये आर्क लेंथ थोड़ी ना डिस्प्लेसमेंट है. बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट ट्राइंग टू जो रिलेशन जो है लीनियर वेरिएबल में और एंगुलर वेरिएबल में, उन्हें अगर हमें रिलेट करना है तो क्या होगा कि लेट्स से वही पुली एंड रोप वाला केस, इफ दैट पुली हैज ट्रेवल्ड बाय थीटा, तो इतनी आर्क लेंथ विल गेट फ्री ना, रोप की आर्क लेंथ विल गेट फ्री जो कि धरती पे गिर जाएगी. सो उसका करस्पॉन्डिंग लीनियर वेरिएबल हम क्या बोल सकते हैं, दैट विल बी दिस. एंड इफ वी वांट टू use the linear variable equations, what we'll have to take as displacement, we'll have to take this length, है ना. मैंने क्या किया भाई, घुमाया उसको मैंने बहुत सारा, तो रस्सी खाली हो गई, रस्सी खाली हो गई. क्लियर. नाउ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द एंगल, कितना एंगल उसने रोटेट किया. लेट्स से इट हैज रोटेटेड, हमें पहले से पता है इट हैज रोटेटेड 2 पाई. 2 पाई मतलब कितनी लेंथ फ्री होनी चाहिए, 2 पाई आर लेंथ फ्री होनी चाहिए. सो 2 पाई आर लेंथ फ्री हो जाएगी. नाउ व्हाट आई विल डू, भाई आई हैड दिस मच टाइम, इन दिस मच टाइम द लेंथ ऑफ द रोप व्हिच गॉट रिलीज्ड इज 2 पाई आर. क्लियर. द लेंथ व्हिच गॉट रिलीज्ड वाज 2 पाई आर. नाउ आई हैव डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से हमें ओमेगा गिवन है, देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द एंगल, है ना. वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द एंगल. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हम लोगों को जो एंगल मिल रहा है उसका करस्पॉन्डिंग लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल बी करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ. क्लियर है ये चीज. सो यहाँ पे अब एक चीज ये है कि अगर आप वेक्टर में इनकी बात करो, जैसे डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, सो इन दिस केस ये तो पूरे टाइम डायरेक्शन चेंज कर रहा है, पूरे टाइम डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना इस पूरे में. तो इसलिए व्हाट वी डिड, हमने लिया छोटा छोटा, इंस्टेंटेनियस लेकर के चल रहे हैं हम, क्योंकि फॉर अ बिग इंटरवल और फॉर अ बिग थीटा वी विल नॉट बी एबल टू टेक दिस एज अ वेक्टर. सो व्हाट वी डिड, यहाँ पे वी टुक d theta, this is d theta, this is r, so this will be, now this is very small, this can be taken as a vector, so this will be ds which is equal to r d theta. ठीक है, ds is equal to r d theta. So this is the relation between displacement and angular displacement, displacement and angular displacement. Now if I want to find out the relation between velocity and angular velocity, what I will do, ds by dt, and at this instant I am just taking the magnitude. आपको जो डायरेक्शन विथ डायरेक्शन जो है विथ अ वेक्टर, मतलब इनको वेक्टर लेकर के जो रिलेशन बनाते हैं, दैट आई विल टेल यू, वो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट आता है. एंड आई होप, मतलब आई नो कि आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट रिसेंटली पढ़ा है, क्योंकि अभी यूज होने वाला था. आपको अभी अगर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते तुरंत उसका यूज होता है, यू विल बी एबल टू फील इट कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आता है, तो इसलिए हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट आपको अभी पढ़ाया है. सो यहाँ पे क्या है, इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ कंसेप्ट आएगा which I am going to tell you, but for now just take the magnitude, not vector, don't take it as a vector. So क्या है हमारे पास, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, magnitude of the displacement is r d theta. Now what I am doing, I am finding out the speed find out किया. So ds by dt is the speed, displacement divided by time is the speed. तो यहाँ पे क्या जाएगा, r d theta divided by dt. क्लियर है, r d theta divided by dt. So यहाँ पे क्या आया, this is linear speed v which is equal to r omega. These are very important relations. आप जब रोटेशन पढ़ेंगे, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, when you are going to study the rotational motion, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज होंगी. इसलिए सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोटेशनल मोशन, बहुत उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि when you combine the translation motion which is जो हमने किसमें पढ़ा है, रेक्टिलिनियर प्रोजेक्टाइल एंड रेक्टिलिनियर प्रोजेक्टाइल वगैरह में पढ़ा है. व्हेन वी कंबाइन दिस रिलेशन विद दिस मोशन विद सर्कुलर मोशन, इट बिकम्स रोटेशनल मोशन बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पे क्या, दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी यूज्ड इन रोटेशनल मोशन. प्लीज ध्यान से पढ़ें, नोट्स अच्छे से बनाएं, सोए ना रहें. अगर नींद आ रही है तो घूम फिर के आ जाओ, पॉज कर दो वीडियो, घूम फिर के आ जाओ एंड देन सिट स्ट्रेट एंड स्टडी. सो हमारे पास रिलेशन आया, लीनियर स्पीड इज इक्वल टू r इंटू एंगुलर स्पीड. Linear speed is equal to r into angular speed. V is equal to r omega. ठीक है, s is equal to r theta. S is equal to r theta या फिर ds is equal to r d theta. V is equal to r omega. Now, if I want to find out the acceleration find out करना है तो क्या होगा,
यहाँ पे हमारे पास इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ जाएगा dv डिवाइडेड बाय dt। अगेन आई एम कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ओनली, these are all magnitude, नीचे नोट में लिख लो। सो dv डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू r कांस्टेंट रखा d ओमेगा बाय dt प्लस ओमेगा कांस्टेंट रखा dr बाय dt। नाउ व्हेन वी आर स्टडीइंग द सर्कुलर मोशन, तो ये r क्या होगा, यहाँ पे r का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, ये हमेशा क्या रहने वाला है r, सो दिस इज गोइंग टू बी 0। तो हमारे पास क्या आ गया, dv डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d ओमेगा बाय dt। क्या था, when we change the magnitude of angular speed, who is responsible for that? For this, alpha is responsible, which is angular acceleration. Angular acceleration changes the angular speed. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r alpha। क्लियर? So हमारे पास रिलेशन आ गया a is equal to r alpha. So these are the relation between linear variables and angular variables. जो भी इसका डायरेक्शन वाला कंसेप्ट है, आई एम गोइंग टू टेल यू, जस्ट वेट फॉर इट, ठीक है। नाउ इसमें और एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जैसे आई टोल्ड यू दैट दिस s, इफ थीटा इज गोइंग टू बी लार्जर, दिस s इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस एंड वी कैन नॉट टेक इट एज अ वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हमने देखा तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे डायरेक्शन क्या था, इट वाज टेंजेंशियल, डायरेक्शन ऑफ दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाज टेंजेंशियल। सिमिलरली एट एनी इंस्टेंट, अगर कोई पार्टिकल है, गिव मी अ सेकेंड, सो इफ यू सी एनी पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, लाइक दिस पार्टिकल इज डूइंग सर्कुलर मोशन, सो यहाँ पे एट एवरी इंस्टेंट सी दिस इज मूविंग, when it is in this position, है ना, जब ऊपर है यहाँ पे it is moving like this, it is perpendicular, इस लेंथ के क्या है, perpendicular, it is perpendicular, जब यहाँ पे है it is perpendicular। so perpendicular मतलब अगर आपके रेडियस के perpendicular है, it means ये कैसा है, it is tangential। so यहाँ पे हर इंस्टेंट पे velocity is tangential, किसी भी पॉइंट बना लो, it is tangential, क्लियर है। so now angular acceleration, velocity is like this, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी जो बनाओगे आप, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो क्या है, इट इज लाइक दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बट एट दिस इंस्टेंट इफ समवन आस्क यू कि भाई व्हाट इज द वेलोसिटी का, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, आप क्या बोलोगे, हाँ इस इंस्टेंट पे इधर जा रहा है, इस इंस्टेंट पे इधर जा रहा है। सो पार्टिकल हैज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल, कैसा है, टेंजेंशियल है। नाउ when you talk about the acceleration, linear acceleration, clear है, तो linear acceleration की जब बात करोगे तो it can have two possibilities। यहाँ पे this is nothing but change in the magnitude, ये हमने magnitude लिया था, this we have taken as this is magnitude, so here we are talking about the change in magnitude of velocity, it means change in speed। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे और एक टर्म आएगा, और एक acceleration आएगा which is causing the change in direction। now we are just talking about the change in, this is speed, so change in speed, so this acceleration is what, this is only, it is causing the change in speed, यहाँ लिख लो, causing change in speed। so if it is causing change in speed, इसका काम सिर्फ है स्पीड को चेंज करना, so either it will be in the direction of velocity or opposite to the direction of velocity, clear है। so again the acceleration is also going to be, it is going to be tangential, क्योंकि इसका काम क्या है, स्पीड को कम करना या ज्यादा करना, तो यहाँ पे क्या है, it is going to be tangential। if it is in the direction of velocity, अगर ये हमेशा ऐसे है, then its velocity, its speed is going to increase, if it is opposite then speed is going to decrease, clear है ये चीज। now if we talk about angular acceleration, so angular velocity is like this at this instant, या फिर in this case angular velocity is like this। so if angular acceleration is in the direction of velocity, then what we are going to get, angular velocity will increase। if angular velocity is like this and angular acceleration is like this, then angular velocity is going to decrease, clear है ये चीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, जो कि हमेशा होता है, if they are in the same direction, velocity and acceleration are in the same direction, then magnitude will increase, if they are in the opposite direction magnitude will decrease, ठीक है। तो यहाँ पे linear variable अगर आप देखो, so linear variable are tangential
And if you talk about angular variable, they are either out of the plane or inside the plane. Depends कि किस तरीके से हमारा situation है. Clear है चीज? तो these are the some important points about the angular variables and linear variables. We'll solve some problem and then next we'll move to the next topic. So यहाँ पे question भी लिख लो कि first question is these kind of questions again we have done in kinematics. बहुत सारे questions किए हैं. यहाँ पे just in place of v we will write omega, in place of u we will write omega naught, in place of alpha we will write, in place of a we will write alpha, in place of s we will write theta. तो just एक बार equations लिख लेते हैं हम लोग. omega is equal to omega naught plus alpha t. if I replace v, यहाँ पे क्या है, omega is equal to v by r, v by r is equal to u by r, है ना. initial angular velocity क्या हो जाएगी, initial velocity divided by r plus alpha is a by r into t. क्या आ गया, v is equal to u plus at. ठीक है. तो यहाँ पे क्या करें, the way we treated these equations, in the same way we can treat these equations. Second equation was theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. Just replace theta is equal to s by r is equal to omega v by u by r t plus half a by r t square. So s is equal to u t plus half a t square. Third was omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta. So v by r square is equal to u by r square plus 2 a by r s by r. क्या आया, v square is equal to u square plus 2as. So we are getting, अगर आप इस पूरे को डिवाइड कर दो r से you will get u plus at. इसको डिवाइड कर दो r से you will get this. इसको डिवाइड कर दो r से you will get this. और multiply r square in this, multiply r in this, multiply r in this. We'll get, मतलब multiply r in this, we'll get the angular equations for angular motion. Clear है ये चीज? Now question is, first question लिख लो. ओमेगा इज इक्वल टू हमें गिवन है 2t plus 5 पाई रेडियंस पर सेकेंड. ठीक है, गिवन इज ओमेगा इज इक्वल टू 2t plus 5 पाई रेडियंस पर सेकेंड. देन वी हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. लिख लो a इज इक्वल टू, a है फाइंड आउट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, b है फाइंड आउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट and total angle rotated in first 5 seconds. Angular displacement and total angle rotated in first 5 seconds. Find out angular acceleration which is alpha. Find out angular acceleration. ठीक है. Find out time when omega is equal to 25 pi radians per second. अब ये इतने सिंपल क्वेश्चंस है. These kinds of problem we have done in kinematics. बस वेरिएबल्स वर डिफरेंट. तो इसको सॉल्व करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देंगे, नेक्स्ट को भी सॉल्व करेंगे, एक एक करके देखते हैं. आई होप अब तक जो आपको बताया है आपको क्लियर है. एंगुलर वेरिएबल्स आर whatever plane we have, plane of the circular motion. Angular variables will be perpendicular to the plane, either out of the plane or inside the plane. And the linear variables are going to be in the same plane and it will be tangential, है ना, tangential to the circle. जो भी सर्कल में मोशन हो रहा है उसके क्या होगा, टेंजेंशियल होगा. सो यहाँ पे दिस इज वेरी सिंपल. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कब होगी, when t is equal to 0. put t is equal to 0, we got 5 pi radians per second. क्या है, t is equal to 0 पुट कर दो. इनिशियल मतलब t is equal to 0. t is equal to 5 सेकेंड पे हमें फाइंड आउट करना है the angular displacement and total angle rotated. So whenever they are asking total angle rotated, what we have to keep in mind that if angular velocity is becoming 0 at certain point, then angular displacement and total angle rotated are going to be different. है ना, जो हमने लीनियर में किया हुआ है. क्योंकि क्या होगा, अगर उस whatever time interval is given, if there is a change in direction, if there is a turn, particle was moving like this and suddenly it started moving like this, then angular displacement and total angle rotated are going to be different.
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्या वेलोसिटी t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के बीच में कभी वेलोसिटी जीरो हो रही है क्या? नो, व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग इज पॉजिटिव, टाइम इज पॉजिटिव एंड एवरीथिंग एल्स इज पॉजिटिव, सो द एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे कोई लोचा नहीं होगा कि भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग आ गया और टोटल एंगल रोटेटेड अलग आ गया, नहीं आएगा, दोनों सेम ही आएंगे। सो व्हाट विल डू, विल जस्ट फाइंड आउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज ये है कि व्हाट आई कैन डू, डायरेक्टली मुझे दिख रहा है ओमेगा इज इक्वल टू 2t+5 है, 2t+5 पाई है। आई कैन फाइंड आउट थीटा, थीटा एट एनी टाइम, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एट एनी टाइम विल बी, फाई को बाहर ही रहने दो, यहाँ पे क्या जाएगा, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो 2t² 2 + 5t, एंड इनिशियली थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 लेना है। मतलब जैसे हम लोग हमेशा क्या करते थे, पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, इनिशियल एंगल इज थीटा 0 ओनली, है ना, या इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 0 ओनली। तो यहाँ पे कोई दूसरे टर्म की कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें निकालना है थीटा एट t इज इक्वल टू 5, तो थीटा इज इक्वल टू पाई, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 25 प्लस ये आ गया 25, कितना आ गया 50 पाई। क्लियर है ये चीज? आप या तो इसको इंटीग्रेट, जैसे मैंने क्या किया, डायरेक्टली हमने यहाँ इंटीग्रेट करके थीटा निकाल लिया। क्लियर है ये चीज? अब आप लिमिट्स पुट करते हैं फिर निकालते हैं, मतलब सेम ही चीज है वैसे तो, बाकी इस तरीके से हम कर सकते हैं। नाउ हम लोग को क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट दिस, यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया, यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2 पाई, है ना, इसका ये तो क्या है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये क्या है 2 पाई t, टेक पाई इनसाइड, 2 पाई t, इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई t इज 2 पाई, सो 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बचा अब, हाँ, टाइम व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इज 25 रेडियंस पर सेकेंड, तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू क्या गिवन है 2t+5 पाई, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 25 पाई। कब होगा, when t इज इक्वल टू, ये गया 21 गया 10 सेकेंड्स, so at t is equal to 10 seconds the angular velocity is going to be 25 pi। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये तो सिंपल प्रॉब्लम किसका है, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 2 पाई रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 5 पाई, तो एवरी सेकंड इट इज इंक्रीजिंग बाय 2 पाई, तो 5 पाई है और इसको 25 पाई होना है, तो कितना टाइम लगेगा, एक सेकंड में कितने से बढ़ रहा है, एक सेकंड में बढ़ रहा है 2 पाई से, बढ़ना कितने से, 5 से 25 होना है, मतलब 20 से बढ़ना है ना, 20 से बढ़ना है, एक सेकंड में 2 से बढ़ रहा है, 10 सेकंड में 20 से बढ़ जाएगा, 10 सेकंड में वी गॉट 25 पाई। क्लियर है? सो 10 सेकंड में वी गॉट 25 पाई और 50 इनिशियल था 5 पाई और थीटा हमारा आ गया 50 पाई। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम्स हमारे पास जो काइनेमेटिक्स में जैसे थी ऑलमोस्ट वैसे ही रहेंगी, एक्सप्रेशन बस हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स चेंज कर देंगे एंड विल गिव द प्रॉब्लम एज होमवर्क, बस उनको सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, ओमेगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी पाई रेडियंस पर सेकेंड, है ना, टी स्क्वायर माइनस टी पाई रेडियंस पर सेकेंड। नाउ इन दिस केस वी हैव टू फाइंड आउट the angular displacement and total angle rotated for t is equal to 5 seconds. Total angular displacement and total angle rotated for t is equal to 5 seconds. Now again we'll have to check whether this particle is going in same direction for the complete time interval 5 seconds or it is taking some turn. If it is taking some turn means the total angle rotated and angular displacement are going to be different. Let's say it was going like this and then suddenly, not suddenly, its velocity has become 0, angular velocity, and then it started coming in this direction. So angular displacement क्या लगेगा? Angular displacement will be this, है ना, ऐसे गया माइनस ऐसे गया, so अभी यहाँ पे पहुंचा है तो this will be total, it will be its angular displacement, whatever positive displacement minus negative, and that will be the net displacement. If you talk about the total angle rotated, then what will have to do, इतना एंगल रोटेट किया है in this direction and then इतना एंगल रोटेट किया है in this direction, both will get added like this. यहाँ पे मान लो at t is equal to 0 हम यहाँ पे हैं, at t is equal to some instant its velocity has become 0 and then particle at t is equal to 5 second it has come here. तो this is the positive displacement, this is positive direction में, इधर कैसे जा रहा है, it is moving in positive direction,
तो दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी, इट इज मूविंग लाइक दिस, इट विल बी नेगेटिव। सो हमें क्या करना है, पॉजिटिव प्लस दिस नेगेटिव, तो नेट होके कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव किया, उसमें हमने कुछ नेगेटिव ऐड किया, देन डिस्प्लेसमेंट विल बिकम ओनली दिस पार्ट, we have basically subtracted this part from this part, so this will be the displacement. Now if you want to find out the distance, what we'll have to do, this as positive, this will also as positive, and then add it, so we'll get the net and net path traveled, total path length. Similarly we have to do in this case. So what we'll have to do, first find out the instant when velocity, or in this case angular velocity, has become 0. Let's see if it has become 0 before 5 seconds or after 5 seconds. So if we find out omega is equal to 0 is equal to t square minus t into pi radians per second, क्या मिला यहाँ से हमें, यहाँ से हमें मिला t minus 1 into pi is equal to 0. It means t is equal to 0 and t is equal to 1. At these two instants the particle has come to rest. So initially it started from rest and t is equal to 1 पे it has again come to rest. अब यहाँ पे ये भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ भाई, t is equal to 1 पे रेस्ट में आ गया, इसका मतलब इसने टर्न बहुत जल्दी ले लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, there is a possibility, चलो इसको यही रहने देते हैं, दूसरा बना लेते हैं कि क्या हो गया, ये इस तरीके से आ गया, t is equal to 1 पे यहाँ, सॉरी t is equal to 0 पे यहाँ, t is equal to 1 पे यहाँ and t is equal to 5 पे at this point. इसका मतलब if we see, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, हाउ वी विल फाइंड आउट द टोटल एंगल रोटेटेड या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ काइनेमेटिक्स. सो व्हाट विल हैव टू डू, फर्स्ट फाइंड आउट दिस, है ना, इफ यू कीप द वैल्यू t इज इक्वल टू 5 विल गेट द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, इनिशियल एट t इज इक्वल टू 0 एंड फाइनल. दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट व्हेन यू कीप t इज इक्वल टू 5 इन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. So this will be the displacement. Now how we will find out total distance, या in this case total angle rotated, तो हम क्या करेंगे, we'll find out up to this, इसको दो बार ऐड करो and then do it. Clear? तो देखते हैं इसमें क्या आ रहा है. तो यहाँ पे t is equal to 0, omega is 0, t is equal to 1 पे omega is 0. So हमने क्या किया, हमने find out किया theta at t is equal to 1 second, कि at 1 second कितना थीटा उसने चल लिया है. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ओमेगा अगर इतना है तो हम थीटा क्या लिख सकते हैं, थीटा विल बी टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 पाई. हमें फाइंड आउट करना है 1 सेकेंड पे, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 माइनस 1/2, 1/3 माइनस 1/2 पाई, है ना. कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1/6 पाई, मतलब थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6. अब ये कैसा केस है भाई, हम लोग का जनरली जो हमारे दिमाग में जो रहता है वो क्या रहता है कि इस साइड हम पॉजिटिव लेते हैं, इस साइड हम नेगेटिव लेते हैं. अब पहली नेगेटिव आ गया, एट थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब पहली नेगेटिव आ गया, तो हमने इधर नेगेटिव ले लिया, क्या दिक्कत है, इधर नेगेटिव ले लो इधर पॉजिटिव ले लो. इट मींस इट हैज ट्रेवल्ड माइनस पाई बाई 6. यहाँ पे आए तो इसका थीटा कितना था, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6. अब फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ठीक है. एट t इज इक्वल टू 1 इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस पाई बाई 6, और अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस पाई बाई 6. अब फाइंड आउट करते हैं कि थीटा एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स कितना है, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे कितना आ जाएगा, 125/2, है ना, 125/3 सॉरी माइनस 25/2, 125/3 माइनस 25/2 कितना आ जाएगा ये हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू 250 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 6 पाई, यहाँ पे पाई भी है, तो कितना आ गया, ये आ गया 175/6 पाई, है ना. अगर यहाँ पे हम माइनस करेंगे 75 तो 175/6 इंटू पाई. तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई इट हैज ट्रेवल्ड, हम लोग को पहले दिखा रहा था डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, बाद में डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है पॉजिटिव. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स सी. तो अगर कंफ्यूजन हो रही है तो हम लोग जो जनरली लेते हैं नेगेटिव का डायरेक्शन, उसी को नेगेटिव ले लेते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, पार्टिकल ऐसे आया, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 पे इट इज एट थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6, एंड देन एट t इज इक्वल टू 5 इट इज एट 175 पाई बाई 6.
है ना, थीटा इज इक्वल टू 175 पाई बाई 6, 175 पाई बाई 6। अच्छा, मतलब पहले नेगेटिव में चला और फिर पॉजिटिव में आ गया। क्लियर है ये चीज? पार्टिकल हैज स्टार्टेड इन दिस डायरेक्शन एंड देन इट हैज कम टू दिस डायरेक्शन। नाउ डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट तो सिंपली यू पुट द वैल्यू ऑफ t इन द इक्वेशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। और अगर आपके पास इस तरीके का है, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, इन दिस केस वी डोंट हैव इक्वेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट नहीं है, तो हमने क्या किया, टू फाइंड आउट थीटा यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया है। हम लोगों ने थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर में नहीं रखा, यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटीग्रेट किया है। ठीक है, अगर ये केस होता तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर में रख दिया, इसमें वो केस नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, पहले इट हैज रोटेटेड नेगेटिव एंगल, जो भी आपको डायरेक्शन लेना है आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो पहले इसने क्या किया, नेगेटिव एंगल रोटेट किया -π/6, फिर उसको कवर किया -π/6 एंड देन 175 π/6। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो कितना आया, बस t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5, यहाँ पे t इज इक्वल टू 5 पुट किया हमने, यहाँ से हमने थीटा फाइंड आउट किया, t इज इक्वल टू 5 पुट किया, वी गॉट दी angular displacement. Now total angle rotated, so this is angular displacement, we want to find out total angle rotated. तो ये एक्स्ट्रा उसने जो चला है -π/6 and π/6, -π/6 and π/6, that we will have to add ना, तो 175 π/6 plus π/6 π/6 2π/6 कितना आ जाएगा, 177 π/6 is the total angle rotated. Total angle rotated is 177 π/6। क्लियर है चीज? तो आई होप आपको इस तरीके के प्रॉब्लम्स क्लियर हैं। ऐसे आपको होमवर्क में और प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, प्लीज सॉल्व देम। ऐसे हमने काइनेमेटिक्स में कर रखे हैं, बट जस्ट टू गेट यूज्ड टू विद द एंगुलर वेरिएबल्स आपको ये एक बार और कर लेने चाहिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ग्राफ का है, जो कि हम बिल्कुल काइनेमेटिक्स में हमने इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हुए हैं, बट जस्ट अ रिविजन। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये है -4, दिस इज 2 ओमेगा वर्सेस t। ठीक है, इन दिस केस फाइंड आउट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड आउट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड आउट टोटल एंगल रोटेटेड एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन t is equal to 5 seconds. Find total angle rotated and angular displacement in t is equal to 5 seconds. Find out time when angular displacement is 0. Find out time when angular displacement is 0 and find the acceleration, angular acceleration. Find angular acceleration. Please try this problem. So I hope you have tried to solve this problem. Let's see the solution. So यहाँ पे क्या है, हमें given है omega versus t. Omega versus t. So definitely we can find out the initial angular velocity very easily. At t is equal to 0, at t is equal to 0, angular velocity is omega is equal to -4 radians per second. At t is equal to 0 क्या है, angular velocity is -4 radians per second. And next they were asking the total displacement, total angular displacement and total angle rotated in t is equal to 5 second. यही था ना, नेक्स्ट यही लिखवाया था। So 5 सेकेंड में we have to find out the angular displacement and total angle rotated. So here we can see, पहली चीज तो क्या है, आपके पास जब ओमेगा टी ग्राफ होता है, from its area under curve we can find out the angular displacement. एक एरिया नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टेक नेगेटिव, जो नीचे वाला एरिया है टेक इट एज नेगेटिव, ऊपर वाला एरिया टेक इट एज पॉजिटिव। फॉर टोटल एंगल रोटेटेड क्या करना है, सारे को पॉजिटिव लेके ऐड करना है। ये सब सारा हम काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। सो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, भाई ये एरिया तो आई कैन कैलकुलेट, बट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, लेट्स से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड इस पॉइंट पे है। हाउ आई कैलकुलेट दिस एरिया, क्या कर सकते हैं आप ये? यस, अगर आपके पास ये दो वैल्यूज गिवन है तो आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या है, दिस इज थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा है। सिंपल जो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस होते हैं हमारे पास, यू कैन यूज दैट और यू कैन यूज थीटा। यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, थीटा tan थीटा इज इक्वल टू है tan थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस।
सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें 4/2 कितना आया 2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको लेट्स से दिस इज एट दिस पॉइंट वी हैव ओमेगा डैश, सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा डैश डिवाइडेड बाय कितना है ये 5 एंड ये 2, दिस इज 3, सो ओमेगा डैश बाय 3, ये टोटल है 5, दिस इज 2, सो दिस इज गोइंग टू बी 3, लेंथ ऑफ दिस साइड इज 3, लेंथ ऑफ दिस साइड इज ओमेगा डैश, सो क्या आ जाएगा ओमेगा डैश इज इक्वल टू 6 रेडियंस पर सेकेंड, सो दिस इज 6। अब क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वाला जो एरिया आ रहा है कितना आ रहा है, इसको आप लोग बोल सकते हो थीटा नेगेटिव, कितना आ रहा है, तो इसका एरिया हाफ बेस हाइट कितना है, इट इज 4। पॉजिटिव वाला एरिया कितना है, हाफ बेस इज 3, हाइट इज 6, कितना आया, इट इज 9। सो हमारे पास पॉजिटिव एरिया है 9, नेगेटिव एरिया है 4, ठीक है। तो हमारे पास अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 9 माइनस 4, कितना आ जाएगा 5 रेडियंस, मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कितना आ रहा है 5 रेडियंस। टोटल एंगल रोटेटेड कितना आ जाएगा, इट इज दिस प्लस दिस, जस्ट एडेड, तो 13 रेडियंस। और क्या फाइंड आउट करने बोला था, एक्सेलरेशन फाइंड आउट, एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने बोला था, तो कितना आएगा, व्हेन यू हैव ओमेगा टी ग्राफ या फिर वीटी ग्राफ, इट्स स्लोप विल गिव अस द एंगुलर एक्सेलरेशन इन दिस केस एंड एक्सेलरेशन इन दैट केस। तो यहाँ पे इसका हमें स्लोप निकालना है, क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं, यस, स्लोप इज नथिंग बट द tan थीटा ऑफ द लाइन, this line, tan theta of this line, theta is the angle between line and the time axis, clear है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, slope which is nothing but alpha is equal to tan theta, this line is making theta angle with time axis, और tan theta कितना आ रहा है हमारे पास 2, tan theta कितना आया था 2, it means 2 radians per second square, 2 radians per second square, क्या ये करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी थी -4, 2 सेकेंड में कितनी हो गई, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इट इज 0, 2 सेकेंड, इन 2 seconds एंगुलर वेलोसिटी हैज बिकम 0, इट मींस एवरी सेकेंड इट वाज इंक्रीजिंग बाय 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड। इनिशियली इट वाज -4, इन 1 सेकेंड इट हैज बिकम -4 + 2 -2, फिर इन 1 सेकेंड इट हैज बिकम -2 + 2 0। सो डेफिनेटली कितना होना चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन इज 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। Again, one more thing they had asked us to find out, which is time when angular displacement is becoming 0. तो यहाँ पे angular displacement कितना है, नेगेटिव वाले में है 4, हमें पॉजिटिव वाले में भी 4 चाहिए, इसमें तो कितना आ रहा है, in this part it is 9, इसका मतलब पहले क्या हो जाएगा 0, पहले जो पॉजिटिव वाला है वो 9 है, तो पहले ही 4 हो जाएगा, इसका मतलब t डेफिनेटली 5 सेकेंड से कम रहेगा। तो अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका एरिया, यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका एरिया क्या होना चाहिए, इसका एरिया होना चाहिए इक्वल टू 4, है ना, 4 रेडियन होना चाहिए। तो अब हमें पता है कि दिस इज बेस हमें नहीं मालूम, लेट्स से दिस इज t, ये क्या है t है, अगर ये t है तो ये टोटल मतलब t मतलब ये पूरा का पूरा t है ना, जैसे यहाँ पे t इज इक्वल टू 5 वैसे यहाँ पे t है, तो दिस विल बिकम, दिस लेंथ ऑफ द ट्रायंगल विल बी t - 2, तो हाफ t - 2। नाउ दिस, इसको हम बोल देते हैं ओमेगा डबल डैश। क्या आपको ओमेगा डबल डैश पता है, नहीं, लेकिन आपको क्या पता है tan थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डबल डैश डिवाइडेड बाय t - 2 which is equal to 2, तो ओमेगा डबल डैश इज इक्वल टू 2 into t - 2, समझ में आया, ओमेगा डबल डैश इज 2 into t - 2, tan थीटा लगाया ना हमने सेम चीज। अब यहाँ पे क्या जाएगा, हाफ t - 2 का स्क्वायर इंटू 2, और ये कैंसिल हो गया, दिस शुड बी इक्वल टू, इफ दिस इज 4 दिस शुड बी इक्वल टू 4, ताकि 4 and 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 4, सो t इज इक्वल टू क्या आ गया, t - 2 इज इक्वल टू आया 2, सो t इज इक्वल टू आ गया 4 सेकेंड, ठीक है। वैसे अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो आप डेफिनेटली इसको सिमेट्री से कर सकते हो, भाई इधर जितना एरिया है उतना इधर होना चाहिए, तो बस क्या होगा, ये अगर 2 है ना, यहाँ से यहाँ 2 है और यहाँ पे 4 हुआ, स्ट्रेट लाइन है ये, तो यहाँ पे 2 सेकेंड में अगर कितना हो गया, ये -4 से 0 हो गया, तो और 2 सेकेंड में
2 से कितना 0 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा अगर 0 से 2 में कितने से कम हो गया ये -4 से 0 हुआ 2 सेकंड में, तो 0 से 4 हो जाएगा 2 सेकंड में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू और 2 सेकंड मतलब 4 सेकंड, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा these two will be same, और सेम है तो एरिया सेम होगा, एरिया सेम है तो ये दोनों कैंसिल कर लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे अगर 2 सेकंड, ये 2 सेकंड है तो ये भी 2 सेकंड ही होगा, है ना। 2 सेकंड में जितना उसने नेगेटिव एरिया गेन किया उतना ही उसको पॉजिटिव एरिया गेन करना है, एंड बिकॉज दिस इज स्ट्रेट लाइन हम डायरेक्टली ये चीज कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे हमें डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0 मिलेगा। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। एक क्लास प्रॉब्लम करते हैं, उसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि हम अगेन काइनेमेटिक्स में किए हुए हैं। तो हमारे पास है ओमेगा इज इक्वल टू -t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6 रेडियंस पर सेकेंड, देन प्लॉट थीटा t एंड अल्फा t। क्या ये हम कर सकते हैं, प्लॉट ओमेगा t, थीटा t एंड अल्फा t, ये करना है। इससे आपका ग्राफ का लिटिल रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। सो कैसे करेंगे सिखाया था आपको। पैराबोला ड्रॉ करना आता है, ओपन अप ओपन डाउन पता है, जीरोस बना लो, या फिर क्या कर सकते हैं पहले उसका स्लोप निकाल लो, स्लोप को प्लॉट कर लो, देन प्लॉट इट। तो तरीके हैं हमारे पास। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल प्लॉट दी, क्या चाहते हैं थीटा टी, ओमेगा टी, अल्फा टी, क्या करना चाहिए, कोई एक तरीका लेके चलते हैं। सो अगर हमने पैराबोला ड्रॉ किया पहले, ओमेगा का यह एक्सप्रेशन कैसा है, इट इज क्वाड्रेटिक, तो ये कैसा बनेगा, एक पैराबोला बनेगा, है ना। तो इसके जीरोस क्या बन रहे हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू -t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6 है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, एंड देन वी कैन कैलकुलेट दी जीरोस। यहाँ पे क्या बनेंगे t माइनस 3 एंड t माइनस 2, है ना, t माइनस 3 एंड t माइनस 2। सो नाउ ओमेगा t, देन थीटा t, देन अल्फा t। थीटा t विल बी, इसको इंटीग्रेट किया, सो माइनस टी स्क्वायर बाई 2, टी क्यूब बाई 3 प्लस 5t स्क्वायर बाई 2 माइनस 6t, एंड अगेन वी हैव टू टेक दैट इनिशियली थीटा वाज 0, सो यहाँ पे कोई कांस्टेंट वाला टर्म नहीं आएगा। सो माइनस टी स्क्वायर बाई 3 प्लस 5t स्क्वायर बाई 2 माइनस 6t, इसको प्लॉट कर लेंगे। और अल्फा t इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन -2t प्लस 5। सो ये तो मैंने जस्ट एक्सप्रेशन क्या आ रहे हैं वो हमने देखा, बट फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ हमें इसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे हमारे पास है ओमेगा t, तो हम लोग क्या बना लेते हैं, t इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 2। सो 1 2 3, ठीक है, दिस इज t इज इक्वल टू 2, दिस इज t इज इक्वल टू 3। नाउ दिस इज अ ओपन डाउन पैराबोला, ओपन डाउन पैराबोला। तो कैसा बनेगा, एंड पासिंग फ्रॉम t इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 2, तो कैसा आएगा कुछ, ठीक है, छोटा सा बन गया बट ठीक है। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ ओमेगा टी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें प्लॉट करना है इसको, थोड़ा सा हम क्या करते हैं दूर बना लेते हैं, सो दैट इट विल बी विजिबल। 2 3, अब यहाँ पे t is equal to 2, t is equal to 3, and if we plot alpha t, तो अल्फा t कैसे प्लॉट करेंगे, इसका स्लोप हमारे पास अल्फा क्या आएगा, d ओमेगा बाई dt, तो इसका स्लोप विल बी वैल्यू ऑफ, इसका स्लोप विल बी वैल्यू ऑफ अल्फा। तो सी द स्लोप, स्लोप यहाँ पे कैसा है, इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव लेस पॉजिटिव एंड 0। स्लोप इज पॉजिटिव देन लेस पॉजिटिव देन 0। तो अल्फा कैसे चेंज हो रहा होगा, पहले कुछ पॉजिटिव देन 0 एंड आफ्टर दिस नेगेटिव 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 मोर नेगेटिव। इट मींस अल्फा क्या आएगा एट दिस पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे स्लोप इज 0, इस पॉइंट पे अल्फा विल बी 0। तो यहाँ पे लेट्स से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा आएगा और ऐसा जाएगा,
पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव, जीरो, यहाँ पे स्लोप जीरो, सो यहाँ पे अल्फा जीरो, सो दिस विल बी अल्फा एंड टी, ठीक है। आफ्टर दिस नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव में इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्लियर। नाउ वी हैव टू प्लॉट दी थीटा टी, तो इक्वेशन को नहीं देखना है। नाउ वी नो दैट d थीटा बाय dt इज इक्वल टू ओमेगा, d थीटा बाय dt इज इक्वल टू ओमेगा, तो इसका स्लोप क्या था, अल्फा की वैल्यू, इसका स्लोप, इसका हमने स्लोप देखा एंड वी प्लॉटेड अल्फा। अब इस केस में हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू ऑफ ओमेगा, ये है वैल्यू ऑफ ओमेगा इज स्लोप ऑफ थीटा टी, d थीटा बाय dt, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, इट इज नेगेटिव, लेस नेगेटिव, फिर यहाँ पे वैल्यू है जीरो। अब यहाँ पे ओमेगा जीरो है, इट मींस ओमेगा जीरो मींस d थीटा बाय dt जीरो, स्लोप ऑफ थीटा टी का जीरो। सो पहले स्लोप इज नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप मतलब कैसा होता है, ये नेगेटिव स्लोप है या फिर ये नेगेटिव स्लोप है, सो दिस इज नेगेटिव एंड देन जीरो, यही हो रहा है, नेगेटिव लेस नेगेटिव लेस नेगेटिव जीरो, सो नेगेटिव एंड देन जीरो, ऐसा आएगा। आफ्टर दिस वैल्यू हैज बिकम पॉजिटिव, तो इसके बाद स्लोप कैसा बनेगा, इट शुड बी पॉजिटिव, सो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, पॉजिटिव कहां तक हुआ, इस जगह तक मैक्सिमम पॉजिटिव हुआ, ओमेगा यहां तक बढ़ा, ओमेगा यहां तक बढ़ा मतलब d थीटा बाय dt बढ़ा, बट आफ्टर दिस ओमेगा इज बिकमिंग कम, ओमेगा इज डिक्रीजिंग, सो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, लेकिन यहीं तक पॉजिटिव हुआ, फिर कम होके अगेन इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग एंड इस पॉइंट पे अगेन ओमेगा इज जीरो, ओमेगा इज जीरो मतलब स्लोप अगेन जीरो, मतलब फिर से स्लोप यहां तक बढ़ा, स्लोप फिर स्लोप डिक्रीज हो रहा है और फिर यहाँ पे बन गया स्लोप जीरो, बिकॉज यहाँ पे है ओमेगा जीरो। आफ्टर दिस ओमेगा इज नाउ नेगेटिव, मतलब इसका स्लोप है नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप मतलब ऐसा कि ऐसा, ऐसा, सो यहाँ से कैसे जाएगा, इस तरीके से, सो ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। सो यहाँ पे हम लोग अगेन थीटा स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, मैं सेम ही ग्राफ पे प्लॉट कर रही हूँ, तो इस जगह पे क्या होना है, स्लोप होना है जीरो, ये पॉइंट कौन सा है, t इज इक्वल टू 2, ये पॉइंट कौन सा है, t इज इक्वल टू 3, और ये पॉइंट कौन सा है, ये बीच का जो भी पॉइंट है जहां पे ओमेगा इज मैक्सिमम, इट मींस स्लोप इज मैक्सिमम, यहां पे देखो जीरो पॉजिटिव 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 मैक्सिमम एंड देन इट इज स्टार्टेड डिक्रीजिंग, तो कैसा आएगा, थीटा स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, सो ऐसा आया जहां पे स्लोप इज जीरो, फिर यहां पे क्या होना है मैक्सिमम, और फिर यहां पे स्लोप इज जीरो, और फिर यहां पे स्लोप नेगेटिव, सो दिस विल बी थीटा टी एंड दिस विल बी अल्फा टी। आई होप ये क्लियर है आपको। ऐसे आपको और भी प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे एंड इफ यू वांट टू प्रैक्टिस जस्ट गो टू दी लेक्चर नोट्स ऑफ काइनेमेटिक्स, वहां पे जो ग्राफ कराए हैं उसी को आप फिर से कर लो, तो आपकी इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसका भी रिवीजन हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। नाउ हम लोग एक और कंसेप्ट इसमें पढ़ते हैं फटाफट, टाइम खत्म होते जा रहा है, बिकॉज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी लिख लेंगे, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो इसमें और इंटरेस्टिंग चीज वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस केस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की जब आप बात कर रहे हैं, वन ऑब्जेक्ट या फिर एन ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग अनदर ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी किस किस चीज पे डिपेंड करेगी वो देखना है हमें। डेली लाइफ में हमने इस चीज का एग्जांपल देखा है जो कि हमको समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो राइट रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। सो व्हाट इज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, तो उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, द रेट of rotation of the line joining observer and particle to be observed, the rate of rotation of line joining the observer and particle to be observed is known as relative angular velocity of definitely of object to be observed with respect to observer। तो वो एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, बट the rate of angle rotated by the line joining observer and the particle to be observed is known as relative angular velocity, जो कि हमने पढ़ा है, ठीक है। और उसका अगर हम अपने देसी भाषा में अगर बोलने की बात करें तो क्या होता है कि हमें कितनी अपनी खोपड़ी घुमानी पड़ रही है, कितने अपनी गर्दन को घुमाना पड़ रहा है, और अगर आप गर्दन नहीं घुमा सकते, इफ यू आर अ रोबोट, देन आपको कितना रोटेट होना पड़ रहा है। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। इफ यू आर एट रेस्ट, आप अगर खुद भी बिल्कुल नहीं चल रहे हो, यू आर एट रेस्ट, तो
आप सिर्फ क्या करोगे, अपनी जगह पे घूमोगे, बट इफ यू आर ऑल्सो वॉकिंग देन केस विल बी डिफरेंट। तो अब यहाँ पे क्या है, ये चीज तो समझ में आ गई कि विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्वर हो, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल टू बी ऑब्जर्व्ड इज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमने देख लिया। अब इसके लिए कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। लेट्स से वी हैव टू पार्टिकल्स ए एंड बी, ठीक है, दिस इज ए, इसको लेते हैं बी, बी इज ऑब्जर्विंग ए, बी इज ऑब्जर्विंग ए। नाउ we will be finding out the relative angular velocity of A with respect to B. We'll find out the relative angular velocity of A with respect to B. Now let's say कि A जो है वो इधर जा रहा है। इसके दो तरीके हैं, दोनों बताएंगे हम। ये है वेलोसिटी ऑफ A एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ B, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ A एंड वेलोसिटी ऑफ B, क्लियर है। अब यहाँ पे ये एक चीज बताओ कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कोई ऑब्जेक्ट अगर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। पहली चीज तो ये कि व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग एंड किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, इफ यू आर ऑब्जर्विंग अ पार्टिकल, तो अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है एंड यू आर एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है एंड यू आर स्टैंडिंग on that straight line only, if you extend that straight line you are standing on that straight line only, जो कि हमने एकदम शुरू में देखा था कि आपकी मम्मी आपको सी ऑफ कर रही है और आपका पड़ोसी देख रहा है। there are two cases. So अगर आपकी मम्मी से पूछा जाए कि when you are observing your son are you rotating your head, तो बोलेंगी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि that second particle या जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, that particle is moving on a straight line and I am standing on the same straight line, तो मुझे अपने सर को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है ये चीज। तो जस्ट उस केस में क्या हो रहा है, either that object is moving away from you or it is moving towards you. So if an object is moving on a straight line like this and if you are standing here, ठीक है, अगर वो इधर जा रहा है it means it is moving away from you, अगर वो इधर आ रहा है it means it is moving towards you। क्लियर है ये चीज। तो अब यहाँ पे इस केस में कोई एंगुलर वेरिएबल आया ही नहीं। when this is the observer and this is the particle to be observed, there is no angular variable, कोई एंगुलर वेरिएबल हम अटैच कर ही नहीं सकते when we have this combination of observer and particle to be observed। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, you are standing on the same straight line जिसपे वो मोशन कर रहा है, तो you don't have to rotate your head, either it will go away from you or it will come towards you, that's it। but just imagine that you give a component which is perpendicular to this line। अब इसकी वेलोसिटी ऐसे है प्लस ऐसे है एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी समथिंग लाइक दिस। तो अब क्या होगा, अब जब ये इधर जाएगा, ऐसे जा रहा था, उस मास से हमने पूछा that sun was moving in this direction and suddenly it started moving like this। तो अब क्या होगा, अगर वो बहुत तेजी से जा रहा है तो क्या होगा, हो सकता है आफ्टर सम टाइम, लेट्स से अगर वो यहाँ पे इतनी दूरी पहुंचा है और इट स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो थोड़ी देर बाद वो वहां पहुंच जाएगा। सो आई हैव टू सी लाइक दिस, है ना, ऐसे देखना पड़ेगा मुझे, करेक्ट। सो इफ वी गिव a component of velocity which is perpendicular to the line joining observer and particle to be observed, then there will be angular variables attached to that case। क्लियर है। सो अगर हम यहाँ पे इसको perpendicular direction में velocity दे रहे हैं, then we can attach the angular variables। और let's say कि it doesn't have any component in the direction or in the direction of line joining particle and observer। if we are not giving any component in this direction, इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो इनिशियली द पार्टिकल वाज हियर, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे होगा, ऐसे जाता जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, we'll have to rotate our head रोटेट करना पड़ेगा to see this object। और अगर आप उसके मोशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करो तो इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उससे हमेशा कांस्टेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने हेड को रोटेट करना पड़ेगा एंड दिस डिस्टेंस इज कांस्टेंट, सिर्फ हमको अपने जगह खड़े होके अपने हेड को रोटेट करना है। क्लियर। तो यहाँ पे इफ देयर इज अ कंपोनेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल टू बी ऑब्जर्व्ड, देन ओनली देयर विल बी अ एंगुलर वेलोसिटी। अब ये चल रहा है या रुका हुआ है हमें उससे मतलब नहीं है अभी। इफ इट इज मूविंग वी विल डायरेक्टली फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी। क्या किया हमने अभी, हमने क्या लिया कि भाई इसकी वेलोसिटी कुछ थी इधर, फिर हमने बोला कि अब इधर भी है, सो इट हैज सम वेलोसिटी व्हिच इज लाइक दिस। इट मींस ये क्या कर रहा है, कुछ इधर भी जा रहा है और कुछ इधर भी जा रहा है। इट मींस इट इज मूविंग अवे एंड इट इज मूविंग एट सम एंगल आल्सो। देयर आर बोथ टू केसेस।
क्लियर? अब यहाँ पे अगर इसकी कुछ वेलोसिटी है तो व्हाट विल डू, विल फाइंड आउट रिलेटिव, इसकी वेलोसिटी मान लो v है, va, और इसकी वेलोसिटी vb है, तो व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे, b को ला देंगे रेस्ट में और इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b एंड देन विल डू द प्रॉब्लम। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है वेदर द ऑब्जर्वर इज मूविंग और इट इज एट रेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस इज फॉर श्योर कि अगर इसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, इफ this particle doesn't have any component which is perpendicular to the line joining observer and particle to be observed, then there is not going to be any angular velocity, उसमें कोई एंगल चेंज नहीं होगा, there will be only separation or approach towards the observer। अगर मान लो ऑब्जर्वर इधर चल रहा है और ये पार्टिकल टू बी ऑब्जर्व इधर चल रहा है, इट मीन्स क्या होगा, बोथ आर अप्रोचिंग। अगर ये इधर चल रहा है, ये इधर जा रहा है, तो फिर डिपेंड करेगा कौन ज्यादा तेज चल रहा है। अगर ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इट मींस दे आर गेटिंग सेपरेटेड। बट इसके रिस्पेक्ट में इफ इट हैज सम वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन देन देयर विल बी एंगुलर वेरिएबल्स आल्सो। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एंगुलर वेरिएबल्स टू बी देयर या फिर फॉर एंगुलर वेलोसिटी टू बी देयर शुड बी अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल टू बी ऑब्जर्व। समझ में आ गई ये बात? तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, टू फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी कि हाउ इट डिपेंड्स। इतना तो समझ में आ गया कि इट विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन दी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट से लेना देना है एंगुलर वेलोसिटी को, दैट्स इट। इसको अप्रोच वाला जो है पैरेलल कंपोनेंट टू द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल टू बी ऑब्जर्व से कोई लेना देना नहीं है एंगुलर वेलोसिटी को। तो हम क्या करेंगे, हम लोग पहले देखेंगे, फर्स्ट see the line joining observer and particle to be observed. Now break the relative velocity of particle to be observed with respect to observer and take its component in parallel direction and perpendicular direction. Then let's see क्या होता है। अब यहाँ पे क्या है, velocity of A, velocity of B। अब इस केस में इसका component, this is line joining particle and observer, ठीक है, इसको हमने बोल दिया θ1 और इसको हमने बोल दिया θ2, ठीक है, θ1 एंड θ2, वेलोसिटी ऑफ A, वेलोसिटी ऑफ B। सो अलोंग द लाइन जॉइनिंग क्या हो जाएगा, दिस विल बी VB cos θ2 एंड VB cos θ2 एंड VB sin θ2 एंड दिस इज VA cos θ1 and VA sin θ1। Now in parallel direction में क्या है, velocity of A with respect to B parallel कितना आ रहा है, velocity of A minus velocity of B in parallel direction, velocity of A minus velocity of B, हम parallel direction देख रहे हैं, तो velocity of A VA cos θ1 minus VB cos θ2, this will give us only the velocity of separation or velocity of approach। यहाँ लिख लो velocity of separation or approach। समझ में आ गई बात? This is the velocity of separation or approach कि ये इससे पास जा रहा है या दूर जा रहा है, that's it। Now velocity of A with respect to B in perpendicular direction कितना हो जाएगा, velocity of A in perpendicular direction minus velocity of B in perpendicular direction, VA sin θ1 minus VB sin θ2, ठीक है, VA sin θ1 minus VB sin θ2। सो जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास रिलेशन क्या आ गया था, ओमेगा V इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। तो अभी जस्ट फॉरगेट दीज टू कंपोनेंट्स, जो पैरेलल वाले जो थे इनको भूल जाओ। तो यहाँ पे क्या लगेगा हमें कि भाई VB is at rest, I mean B is at rest, B is at rest, and now A is moving with VA sin theta minus VB sin theta in this direction। हमेशा कैसा चल रहा है वो, this is at rest, this is moving with VA sin theta minus VB sin theta 2 like this, ठीक है, हमेशा इस वेलोसिटी से चल रहा है। तो अगर मैं इन कंपोनेंट्स को भूल जाऊं फॉर अ मोमेंट, ठीक है, क्योंकि वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो हमें this has nothing to do with angular velocity, so what we'll do, we'll just see the perpendicular components। तो अब हमने क्या बोला कि this object is at this much distance, this object is at this much distance, इसको बोल देते हैं RAB, हाँ, और which is moving with VA sin theta 1 minus VB sin theta 2 in this direction,
इस डायरेक्शन में उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या जाएगी, va sin थीटा 1 माइनस vb sin थीटा 2। तो यहाँ पे हमारे पास इस रिलेशन से क्या आ गया, ओमेगा ए बी, मतलब रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू v बाई आर। तो v क्या है, va sin थीटा 1, अच्छा ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, va sin थीटा 1 इधर है, vb sin थीटा 2 इधर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस vb sin थीटा 2, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस vb sin थीटा 2 डिवाइडेड बाई आर ए बी, va sin थीटा 1 प्लस vb sin थीटा 2 प्लस डिवाइडेड बाई आर ए बी, दिस विल बी द एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, दिस इज नथिंग बट v रिलेटिव परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई आर ए बी। क्लियर है ये चीज। तो हमारे पास क्या आएगा, यहां से जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज v रिलेटिव परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि भाई ये इधर कितना एंगल जो हमें जो सर घुमाना पड़ रहा है, अगर वो इसी लाइन में जा रहा है आई डोंट हैव टू टर्न माय हेड, बट इफ इट इज मूविंग लाइक दिस देन स्लोली मुझे घूमना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट डिपेंड्स ऑन r एंड इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। अब इसी को अलग तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। सो अगेन वी हैव टेकन a एंड b, यहाँ पे हमारे पास a है b है, उतना हम लिखेंगे नहीं, वी विल डायरेक्टली राइट कि भाई इसकी जो भी वेलोसिटी थी वी डोंट नो, बट वेलोसिटी ऑफ दिस इज v रिलेटिव, ठीक है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, पैरेलल डायरेक्शन ये है, दिस इज v रिलेटिव, दिस इज v रिलेटिव, यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है, and this is the relative velocity of particle to be observed with respect to observer. Clear? So if we after dt time, if we talk about after dt time, तो यहाँ पे क्या हुआ, after dt time इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इधर है हमेशा, एक हम अभी कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो with respect to this observer this velocity of this particle is v relative in this direction. Clear? So after dt time कितना चल लेगा, ये कुछ dt डिस्टेंस चल लेगा, हमने कहा इतना डिस्टेंस इसने चल लिया, दैट इज v रिलेटिव dt, v रिलेटिव dt। अब यहाँ पे जो भी उसने पैरेलल डायरेक्शन में चला होगा, पैरेलल डायरेक्शन विच इज दिस, तो उसका एंगुलर वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है, तो कंपोनेंट ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज जो भी थीटा है, लेकिन हमें क्या लेना है, दिस इज v रिलेटिव पैरेलल dt एंड दिस इज v रिलेटिव परपेंडिकुलर dt, ऐसा लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, आई हैड v रिलेटिव dt, आई होप ये दिख रहा है, v रिलेटिव dt, इसका एक कंपोनेंट यहाँ आया v रिलेटिव पैरेलल dt, और यहाँ पे आ गया v रिलेटिव परपेंडिकुलर dt। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले था, इसको ऊपर लिख देते हैं, v रिलेटिव परपेंडिकुलर dt। क्लियर। तो आफ्टर सम टाइम when this object has moved like this, कितना v रिलेटिव dt, वो जब चल चुका है तो नई उसकी पोजीशन क्या है, नई पोजीशन उसकी ये है। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो इसका मतलब मुझे कितना एंगल से मुझे घूमना पड़ा, लेट्स से d थीटा। छोटा सा dt टाइम में उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, बिकॉज ऑफ विच आई हैड टू टर्न माई हेड बाई d थीटा। कितने से टर्न करना पड़ा, d थीटा से टर्न करना पड़ा। ठीक है, इसको थोड़ा सा फिर से अगर हम बनाएं तो क्या होगा, ये ऐसे गया, एंड बिकॉज ऑफ विच इट्स न्यू पोजीशन इज दिस, एंड वी हैड टू टर्न आवर हेड लाइक दिस। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया, इसको हमने ब्रेक किया, तो अब यहां पे दिस विल बी v रिलेटिव पैरेलल dt and this is v relative perpendicular dt and this is v relative dt। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, v relative dt is equal to v relative parallel dt plus v relative perpendicular dt, है ना। इन दोनों का जब हम रिजल्टेंट लेंगे, these two are in perpendicular directions, इन दोनों का जब हम रिजल्टेंट लेंगे हमें क्या मिलेगा, v रिलेटिव dt, एंड इन दैट मच टाइम dt टाइम कितना एंगल टर्न हो गया, d थीटा टर्न हो गया, एंगल d थीटा टर्न हो गया। अब यहाँ पे हम एक चीज फाइंड आउट करेंगे कि क्या हम इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, जब आपके पास व्हेन यू हैव वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
आपको सर्कल में बताया था व्हेन यू हैव अ वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये और ये है, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज डी थीटा लेट से, तो यहाँ पे क्या होगा, आर्क लेंथ एंड स्ट्रेट लेंथ, ये जो छोटा सा है इसमें क्या ही आर्क बनेगा, कोई आर्क बन ही नहीं पाएगा ना, सो दिस लेंथ इज आर डी थीटा, है ना, दिस लेंथ इज आर डी थीटा, और इसको आप क्या मान सकते हो, अगर इस डी थीटा को और छोटा करें हम, एकदम इतना छोटा, तो ये क्या है, दिस इज स्ट्रेट ओनली। तो मैंने यहाँ पे आपको बनाने के लिए बड़ा दिखाया है, बट दिस इज वेरी स्मॉल, dt हम इतना छोटा लेते हैं कि हमें जो हमारा अप्रोक्सीमेशन है बहुत ही सही बैठ जाए। तो अब मैंने क्या किया कि भाई ये हमारे पास पहले क्या था, ऑब्जेक्ट और उसके बीच में डिस्टेंस था r, ये दिस वाज द डिस्टेंस r, ठीक है। अब ये r कितने से रोटेट हो गया है, यहाँ पे देखो क्या किया है मैंने, दिस इज r और ये ऐसे रोटेट हो गया है, एंड दिस इज r r एंड ये है आपका परपेंडिकुलर v रिलेटिव परपेंडिकुलर dt, तो ये r एंड ये आपका v रिलेटिव परपेंडिकुलर dt, विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाट आई कैन राइट r d थीटा, मैं लिख सकती हूँ ना, अगर ये भी r एंड दिस इज पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, देन आई कैन राइट दिस इज नथिंग बट r d थीटा लिख सकते हैं, ये कंसेप्ट लगा रहे हैं हम। यहाँ पे वैसे तो होता है ये आर्क, बट फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dt मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, इतने छोटे के लिए विल यू कंसीडर दिस एज एन आर्क, नहीं, ये स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट ही हो गया। तो यहाँ पे r d थीटा आई कैन राइट v रिलेटिव परपेंडिकुलर dt इज इक्वल टू r एंड d थीटा, r d थीटा, तो यहाँ से dt को इधर लेके जाओ, dt को इधर लेके तो d थीटा बाई dt इज नथिंग बट ओमेगा रिलेटिव, d थीटा बाई dt इज नथिंग बट ओमेगा रिलेटिव, कितना आ रहा है, v रिलेटिव परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई r, v रिलेटिव परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई r, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ओमेगा रिलेटिव इज इक्वल टू आ रहा है v रिलेटिव परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई r, दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और ये क्या है, जो पैरेलल डायरेक्शन में हुआ है वो क्या है, स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट, कितना आपसे दूर जा रहा है या पास आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v रिलेटिव पैरेलल dt इज इक्वल टू सेपरेशन और अप्रोच, है ना, तो यहाँ पे इसको हमने लिख लिया मान लो ds, तो यहाँ से तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ds बाई dt इज इक्वल टू v रिलेटिव पैरेलल, तो वो तो सिंपली हमें दिखा रहा है कि कितना दूर या कितना पास आ रहा है, क्लियर है ये चीज, v रिलेटिव पैरेलल dt इज सिंपल डिस्प्लेसमेंट, कि स्ट्रेट लाइन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और कितना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो इसको लिख लो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच, लिख लेंगे इसको। तो यहाँ पे हमारे पास मेन जो चीज आई कि इफ द पार्टिकल हैज सम कंपोनेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन देन ओनली वी आर गोइंग टू हैव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ओमेगा रिलेटिव इज डिपेंडेंट ऑन v रिलेटिव परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, एंड दी r, कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। इसका एग्जांपल हम अपने डेली लाइफ में बिल्कुल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास कि इफ द पार्टिकल इज अवे, क्या आ रहा है, ओमेगा रिलेटिव इज proportional to v relative perpendicular, ओमेगा रिलेटिव इज प्रोपोर्शनल टू v रिलेटिव परपेंडिकुलर, मतलब ज्यादा वेलोसिटी होगी तो ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी दिखाई देगी, कम होगी तो कम दिखाई देगी, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल टू बी ऑब्जर्व्ड। और ये एग्जांपल हम कहाँ देखते हैं, ये हम देखते हैं व्हाइल ट्रैवलिंग, जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो you are moving with a constant velocity, you are moving with a, let's say कि आप constant velocity से जा रहे हो, आपकी ट्रेन है मान लो constant velocity से जा रही है, या आपकी बाइक है which is moving with constant velocity। अब when you are moving like this, यहाँ जो पास में जो पेड़ होता है या बिल्डिंग है या रोड है, it appears to be moving so fast in backward direction, लेकिन दूर कोई अगर पेड़ है तो वो एकदम धीरे 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 चलता दिखाई देता है, क्लियर है। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट इमेजिन कि आप बाइक में बैठे हो, बट बिकॉज यू आर सीइंग रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट यू विल डू, मान लो आप कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहे हो, व्हाट यू हैव डन, यू हैव गिवन योर वेलोसिटी टू एवरी ऑब्जेक्ट यू आर ऑब्जर्विंग। तो हम एक दूर के पेड़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं,
और पास में रोड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वी हैव गिवन आवर वेलोसिटी टू दैट डिस्टेंट ट्री एंड दिस नियर बाई रोड। क्लियर? सो अब क्या हो रहा है कि मेरे रिस्पेक्ट में आई एम एट रेस्ट, दिस रोड इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, एंड मेरा डायरेक्शन ये है, दिस इज अ लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल टू बी ऑब्जर्व, ठीक है। अब उसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, क्योंकि मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी तो मैंने इस डायरेक्शन में दी, तो लाइन जॉइनिंग हो गई ये एंड वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू दैट। सो जो पास में है उसको क्या दिख रहा है? अब वेलोसिटी, भाई मैंने अपनी वेलोसिटी ट्री को भी दी है एंड रोड को भी दी है, तो इन बोथ दी केसेस v रिलेटिव परपेंडिकुलर टू तो सेम ही हुआ ना, बिकॉज मैं सबको तो सेम ही वेलोसिटी दूंगी व्हाटएवर वेलोसिटी आई हैव। तो दिस इज सेम फॉर बोथ, बट फॉर द नियर बाय रोड r इज वेरी स्मॉल। तो क्या दिख रहा है कि बहुत फास्ट वो पीछे भाग रहा है, क्योंकि r इज स्मॉल तो ये क्या दिखेगा, अगर ये छोटा है तो ये क्या दिखेगा, बड़ा, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो कांस्टेंट है। एंड फॉर द डिस्टेंट ट्री दिस r इज वेरी लार्ज, तो क्या दिखता है, ये पूरा क्या बन जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो फॉर दिस रोड v relative is same as v relative for that distant tree, but r for the distant tree is more and r for the nearby road is less. So उस केस में हमें क्या दिखता है कि जो पास वाली रोड है बहुत फास्ट भाग रही है और जो दूर का ट्री है वो बहुत आराम से जा रहा है, ठीक है। तो ये मेन चीज है इसकी कि यहाँ पे v रिलेटिव परपेंडिकुलर और दोनों के बीच में डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो इसका अब ये तो आपका डेली लाइफ का एग्जांपल हो गया, इसको जस्ट नोट में लिखने के लिए लिख लेंगे कि भाई दिस वाज द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, एंड एट डिफरेंट इंस्टेंट्स, ये r1 हो गया, ये डिस्टेंस है हमारे पास डिफरेंट, दिस इज r1, दिस इज r2 एंड दिस इज r3, एंड वी हैव थ्री ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, नाउ मतलब हम लोग यहाँ पे v रिलेटिव परपेंडिकुलर ही ले रहे हैं बिकॉज वी हैव टू ऑब्जर्व द रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज ऑब्जर्वर, दिस इज द पार्टिकल 1, 2 एंड 3। तो फॉर दिस अब क्या हुआ, dt टाइम में तीनों सेम डिस्टेंस चलेंगे बिकॉज ऑल थ्री हैव द सेम वेलोसिटी, तो ऑल थ्री विल मूव सेम डिस्टेंस इन सम टाइम। तो इसने भी उतना ही चला, इसने भी उतना ही चला, इसने भी उतना ही चला, बट व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग फर्स्ट एंगल कितना रोटेट हुआ, इतना। व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग सेकेंड एंगल थोड़ा सा कम रोटेट हुआ, एंड व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग थर्ड अगेन एंगल और कम रोटेट हुआ, है ना। तो फर्स्ट में एंगल इतना रोटेट हुआ, सेकंड में थोड़ा कम, थर्ड में और कम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, r3 इज ग्रेटर देन r2 इज ग्रेटर देन r1, सो ओमेगा 3 इज लेस देन ओमेगा, या पहले थीटा लिख लो, इसको लिख लो थीटा 3, दिस इज थीटा 2, दिस इज थीटा 1, थीटा 3 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1 एंड ओमेगा 3 इज लेस देन ओमेगा 2 इज लेस देन ओमेगा 1, है ना। क्या हो रहा है, यहाँ पे कम एंगल रोटेट करना पड़ रहा है ना, जब तीनों ने सेम डिस्टेंस चला, ऑल थ्री हैड सेम वेलोसिटी, हमने सेम टाइम बाद ऑब्जर्व किया, तो जब यहां से आई वाज ऑब्जर्विंग आफ्टर सम टाइम तीनों कुछ मूव कर चुके हैं, तो इसको देखने के लिए मुझे इतना घूमना पड़ रहा है, उसको देखने के लिए मुझे इतना घूमना पड़ रहा है, उसको देखने के लिए सिर्फ इतना घूमना पड़ रहा है। क्लियर है ये चीज? सो इफ डिस्टेंस इज मोर देन रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी इज गोइंग टू बी लेस। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वी हैव थ्री ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर केप्ट एट द सेम डिस्टेंस। अब हम इसको कांस्टेंट करते हैं एंड विल गिव डिफरेंट वेलोसिटीज। तो यहाँ पे अब क्या है, वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस पॉइंट, एक ऑब्जेक्ट है, सारे के सारे सेम डिस्टेंस पे रखे हैं r पे, एक की वेलोसिटी है v1, एक की वेलोसिटी है v2 एंड एक की वेलोसिटी है v3। यहाँ पे v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v1। तो यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर सम टाइम हम ले लेते हैं 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये v1 डिस्टेंस चलेगा, ये v2 डिस्टेंस चलेगा एंड ये v3 डिस्टेंस चलेगा। So for this I have to rotate the head like this. In second case एंगल ज्यादा हो जाएगा, in third case एंगल और ज्यादा हो जाएगा। So अगर ज्यादा वेलोसिटी से आगे जाएगा, ज्यादा वेलोसिटी से भागेगा, then we'll have to rotate our head by more angle. कम से भागेगा तो हमें कम घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे v3 greater than v2 greater than v1, r is constant, यहाँ पे लिख लोगे velocity is constant, velocity constant। इस केस में क्या है, θ3 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ1, ठीक है। सो ओमेगा 3 ग्रेटर देन ओमेगा 2 ग्रेटर देन ओमेगा 1। सो इफ दैट ऑब्जेक्ट, ये तीन ऑब्जेक्ट अगर जाते जाएंगे, तीनों मूव करते रहेंगे, तो पहले को अगर हम देखें तो पहला जब मूव करता रहेगा तो हमें बहुत धीरे धीरे अपने हेड को टर्न करना होगा। व्हेन सेकेंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग, थोड़ा सा मोर स्पीड से हमें हेड टर्न करना होगा। इन थर्ड केस विथ मोर एंगुलर वेलोसिटी विल हैव टू टर्न दी हेड।
क्लियर है ये चीज? इस पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि किसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या दिख रही है, प्रोजेक्टाइल में विल फाइंड आउट, किसी टर्न टेबल पे अगर पार्टिकल्स बैठे हुए हैं उस केस में विल फाइंड आउट। तो अभी के लिए इतना नोट कर लेंगे। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द परपेंडिकुलर कंपोनेंट perpendicular to the direction of the line joining observer and particle to be observed, and it also depends on the distance between particle and observer. Clear है ये चीज? तो these are some more important points. इसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड देन विल मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक। सो अच्छे से पढ़ते रहें, लेक्चर्स अच्छे से बनाएं, एंड प्लीज बी अटेंटिव व्हाइल सीइंग द लेक्चर्स, एंड जो भी लेक्चर नोट्स बना रहे हैं उसको बहुत अच्छे से बनाएं ताकि आपको रिवीजन के टाइम हेल्प हो। और बस वर्क हार्ड, स्टडी वेल। थैंक यू।